आज के मौका का टॉपिक है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, VMP एंड फैक्टर इक्विलिब्रियम। दीज आर सर्टन सब टॉपिक्स ऑफ द टॉपिक फैक्टर प्राइसिंग जो आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन में गिवन है ऑफ योर अकाउंट्स असिस्टेंट फिनांस के सिलेबस में। इस टॉपिक पे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर प्राइसिंग का टॉपिक सब डिवाइड करके हम इस पे मॉक्स इसीलिए ला रहे हैं सो दैट कि इस टॉपिक की जो मॉक कवरेज है, प्रैक्टिस कवरेज है, वो पूरी हो जाए। नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन द टॉपिक। हमारा टॉपिक कौन कौन सा है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर इक्वलाइजेशन। द फर्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स इज, फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज द क्वेश्चन नंबर 1. The question is, consider the following statements regarding marginal revenue product. Marginal revenue product के बारे में पहला statement given है, वही हमने देख लेना है. The first statement is, marginal revenue product refers to the addition to total revenue from employing one more unit of a factor. This is nothing but the explanation of marginal revenue product. तो statement सही है. Second statement is, marginal revenue product depends upon both marginal product and marginal revenue. Yes, dear students, marginal revenue product depends upon both marginal product and marginal revenue. The statement 2 is true as well. Dear students, under perfect competition, marginal revenue and value of marginal product are always different. Is this the case? Dear students, no, this is not the case. Under perfect competitions जो आपका marginal revenue product है और value of marginal product ये always same होता है, different नहीं होते. ये point आपने याद रख लेना है, right? So answer to your question is statement 1 and 2. Here the statement was, marginal revenue product and value of marginal product दोनों different होते हैं, नहीं होते हैं. Under perfect competition ये दोनों same होते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है. Coming to the question number 2. Which one of the following correctly represents the formula for marginal revenue product? Marginal revenue product की formula आपको पूछ रहा है और कुछ नहीं है. Marginal revenue product, dear students, is nothing but marginal product times marginal revenue. It is nothing, marginal जो आपका revenue है, marginal revenue product की formula, it is nothing but marginal product times the marginal revenue or marginal product multiplied by marginal revenue. This is formula of marginal revenue product. ये आप याद रखेंगे. फिर एग्जामिनर आपको MP मल्टीप्लाइड बाय MR दे देता है तो तब भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू दे देता है, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द 3 इज, consider the following statements regarding value of marginal product. Value of marginal product के बारे में कुछ statements हमने देख लेने हैं. then we have to pick the answer कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है. accordingly we will pick the option. Statement first is, value of marginal product measures contribution of an additional factor unit in monetary terms. Dear students, the statement is true. डिफरेंस भी साथ साथ क्लियर हो रही है. मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन अभी आपको हमने बता दी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? इट इज नथिंग बट इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एडिशनल फैक्टर यूनिट इन मॉनेटरी टर्म्स. द स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल इज मार्जिनल product. Value of marginal product equal is marginal product multiplied by price of an output. Yes dear students, ठीक है. मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इक्वल होता है मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ एन आउटपुट. सिंपल है, इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है. अंडर परफेक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है. अंडर परफेक्ट कंपटीशन VPM इक्वल इज MRP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. तीनों स्टेटमेंट आपके सही है. आंसर टू योर क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. 4 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट्स, कौन सी नीचे दिए गई, नीचे कंडीशन है, इतनी सारी जो कंडीशन है इनमें से कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट करती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन फैक्टर एम्प्लॉयमेंट. जब फैक्टर एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तब फर्म इक्विलिब्रियम में हो, किस कंडीशन से हम आप दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो प्राइस से. When marginal revenue equals price, that is nothing but equilibrium position of a firm in the factor employment, and this is written somewhere. Marginal revenue product equals marginal factor cost. Marginal जो आपका revenue product है it equals marginal factor cost. and मैंने क्या लिखा आपका, जब आपका marginal revenue आपके price के बराबर हो, marginal condition in the factor market, यहाँ here its price does not works.
सॉरी फॉर दिस हेयर मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो मार्जिनल कॉस्ट जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करेंगे तब प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द जो मैं बता चुका हूँ अभी तक, आप याद रखेंगे कि जब आप फैक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तब एक फर्म तभी एम्प्लॉयमेंट में होगी जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है आपका, वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, अब प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है, अब प्राइस की बात आएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, तो आपने बता देनी है कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट है। रिलेशनशिप करेक्ट ये है कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल प्राइस का हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम, this is equilibrium condition in product market, this is equilibrium condition in product market as the factor market में हमारा क्या था, जब marginal revenue product हमारा marginal factor cost के बराबर था। this is nothing but the equilibrium condition in factor market, ये पॉइंट्स आप साथ साथ याद करते हुए देखते हुए चलेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। ओके, coming to the next question number 6. The question number 6 is consider the following statements regarding marginal factor cost. Marginal factor cost के बारे कुछ statements हमें बता देना है कि कौन सा statement सही है, ठीक है। हमें बता देना है कि which statement is correct, accordingly हम अपना option pick कर लेंगे, ठीक है। पहले statements को देख लेते हैं। Dear students, the first statement is it refers to the it कौन है, marginal factor cost. It refers to the additional cost incurred by employing an extra unit of a factor. Obviously dear student, जब हम एक additional cost incur करते हैं by employing an additional unit of a factor, that is nothing but marginal factor cost. Marginal जब भी आ जाए तब आप additional, marginal does mean is additional, ये आप याद रखेंगे। तो factor cost is when we are employing factor, जो हम cost उस factor के employment पे करते हैं, incur cost करते हैं, that is cost. When we are incurring that cost on additional unit, that is marginal cost, ठीक है, marginal factor cost। ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। सेकंड आपका है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस। ऑब्वियसली परफेक्ट कंडीशन में फैक्टर मार्केट में डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर मार्केट में जो आपका मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है ये प्राइस के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कन्फ्यूजन आपके लिए ना हो जाए तभी मैंने कहा था कि फैक्टर मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है आपका ये बराबर होता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स इज नथिंग बट इट इज़ प्राइस। अभी याद आप रखेंगे, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि पहले वाली कंडीशन तो ठीक हो गई, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज़ प्राइस। अगर मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। आ जाते हैं नंबर स्टेटमेंट थर्ड पे, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अंडर मोनोपोली कंडीशंस। नहीं, ये गलत है। मोनोपोली कंडीशंस में आपका कांस्टेंट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट नहीं रहता है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली कॉज अ, नीचे ऑप्शंस में से किस कौन एक रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो फॉर लेबर। लेबर के लिए जो डियर स्टूडेंट्स हम डिमांड करो बनाते हैं या जो डिमांड होती है फॉर लेबर, किस रीज़न की वजह से उसमें राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इफ़ दिस इज़ 2 डायमेंशनल ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, देन हम लेबर करो बनाते हैं, ठीक है। रफली लेबर करो में राइट वर्ड शिफ्ट कैसे होगा, दिस इज़ राइट वर्ड शिफ्ट। तो किस रीज़न की वजह से हो सकता है वो हमने बता देना है डियर स्टूडेंट। द रीज़न इज़ व्हेन देयर इज़ technological improvement increasing labor productivity, when there is टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट अगर होगी तो उसकी वजह से अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, देन दैट इज़ द रीज़न कि लेबर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज लेबर प्रोडक्टिविटी नेट हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। यस, because some reason, because here the case we are taking is technological improvement that increase the productivity of labor। और हम आज तक भी डिस्कस करते रहे हैं कि लेबर की डिमांड जब बढ़ती, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने का यही मतलब होता है कि लेबर डिमांड की शिफ्ट आउटवर्ड होती है, ठीक है। सो और ऑप्शंस को देख लें, डिक्लाइन इन लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, इससे तो डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट नहीं होगी। फॉलोइंग डिमांड फॉर फाइनल गुड, इससे भी डिमांड लेबर की नहीं बढ़ेगी। इंक्रीज इन लेबर वेज रेट अलोन, इससे भी डिमांड जो है लेबर की नहीं बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं जब बेटर टेक्नोलॉजी जो है
बेटर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट अगर हो, अगर बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए, बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो जाती है या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाए, उससे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है, उसका आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है उससे, और लेबर डिमांड भी बढ़ जाती है, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें आपने या साथ साथ याद रख लेने हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैक्टर डिमांड। रिगार्डिंग फैक्टर डिमांड, फैक्टर की जो डिमांड है उसके बारे कुछ स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट गिवन है, एंड हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से आंसर पिक कर लेना है, ठीक है। आंसर पिक करते जाना है। हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट, डिमांड फॉर फैक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये आप अभी से याद रखेंगे, किसी फैक्टर की भी डिमांड जो होती है, उसकी डिमांड होनी है नहीं होनी है, इंक्रीज होनी है या कम होनी है, वो डिपेंड करती है उसकी मार्जिनल, उस लेबर के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर। ये पॉइंट तो आप याद रखेंगे, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, अ फैक्टर विद हायर प्रोडक्टिविटी जनरली कमांड्स हायर रिवार्ड्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझा चुका हूँ, जिस भी फैक्टर की डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी ओब्वियसली जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। इनकम को हम कभी कभार रिवार्ड्स का के नाम से भी पुकारते हैं। रिवार्ड और इनकम एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जिस भी फैक्टर की प्रोडक्टिविटी हायर होगी जनरली वो हायर रिवार्ड्स कमांड करता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डिमांड फॉर लेबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। डियर स्टूडेंट्स, डिमांड फॉर लेबर, और लेबर हमारा फैक्टर है, और डिमांड फॉर फैक्टर इज अ डेराइव्ड डिमांड, इज अ डेराइवर्ड डिमांड। डेराइवर्ड डिमांड मीन्स कि जब फाइनल गुड्स की डिमांड डिसाइड करती है कि लेबर की डिमांड या फैक्टर्स की डिमांड कितनी हो जाएगी, विच मीन्स द डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। यहाँ लिखा इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन आंसर कौन सा आपका है, 1 और 2, ठीक है। Coming to the number next question, question number 9. 9 is, which one of the following best explains why a firm stops employing additional unit of a factor after a certain point. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस है डियर स्टूडेंट, देयर आर सर्टन कंडीशंस। इन कंडीशंस में आपने बता देना है कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है व्हाई आर अ फर्म स्टॉप्स एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ फैक्टर आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। दैट पर्टिकुलर पॉइंट डियर स्टूडेंट्स इज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट falls below the marginal factor cost. This is the point where firm stops employing additional unit of a factor. This is the point, उसके बाद अब फर्म नहीं करेगी, यहाँ स्टॉप वो करती है, ठीक है। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेस हो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से, तो क्या करती है, जब व्हेन योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज लेस देन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, हायरिंग एडिशनल फैक्टर्स रिड्यूस करती है प्रॉफिट को। जब हायरिंग ऑफ एन एडिशनल फैक्टर, लैंड लेबर क्या बोलते हैं, उससे कुछ भी आपको हायर करना है, उससे क्या होता है, उससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो एक फर्म नहीं चाहेगी कि प्रॉफिट रिड्यूस हो, ठीक है। सो जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपका बिलो होता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से, दिस इज द पॉइंट वेयर फर्म स्टॉप्स एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स। Coming to the next question number 10, dear students. The question 10 is, consider the following statements regarding factor pricing under imperfect competitions. There are different types of competitions: perfect competition, imperfect competition, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अपनी कैटेगरीज है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे ऑप्शंस में से, गिवन ऑप्शंस में से, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रिगार्डिंग द इम्परफेक्ट कंपटीशन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस। अंडर imperfect competition, marginal revenue is less than the price under imperfect competition. Dear students, the statement is correct. इम्परफेक्ट कंपटीशंस में क्या होता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ये लेस होता है देन प्राइस विच मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज द केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू
product becomes less than VMP value of marginal product under imperfect competition. Obviously ये भी सही है कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू लेस होता है प्राइस से, आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो भी लेस हो जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से, वो भी कम हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो आपका डियर स्टूडेंट्स है, फर्मर्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन ऑलवेज पे फैक्टर मोर देन देयर प्रोडक्टिविटी, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फैक्टर्स ऑलवेज इन एनी मार्केट आर पेड एज पर देयर प्रोडक्टिविटी, वो स्टेटमेंट हर एक में लागू हो जाता है।